Good morning, students. Today we are going to read chapter number 1 of Honeydew NCRT textbook, The Best Christmas Present in the World. This chapter is written by Michael Morfurgo. There are some dates or periods of time in the history of the world that are very important and everyone should know about them and remember them. कुछ ऐसे डेट्स हैं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में, वर्ड के, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जिनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये स्टोरी, दिस स्टोरी यू विल रीड, जो आप पढ़ने वाले हो, आपको कुछ ऐसे डेट्स और इवेंट्स के बारे में बताना चाहती हैं। जैसे कि ये स्टोरी जो है आपको बताना चाहती हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, जो 1914 के बीच में हुआ था, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में। अब इसके अंदर इस चैप्टर में आप जब अपना टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो आपके पास वहाँ पे कुछ इवेंट्स और कुछ डेट्स बिलो दी होंगी, जिसमें बताया है कि यू हैव टू टेल द इवेंट्स विच अकर्ड ऑन दिस एंड दिस डेट. So I am telling you the dates and what events had happened over there. 4 July 1776, American Declaration of Independence. 17 December 1903, both Wright brothers, Wilbur and Orville, they made their first flight. 6th August 1945, Hiroshima Day, an atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan. 30th January 1948, assassination of Mahatma Gandhi. 12th April 1961, Yuri A. Gagarin became the first human to orbit the Earth. 20th July 1969, Neil Armstrong, he became the first human to set foot on the moon. Before telling you the summary or the details which were in this chapter, I would like to explain you the characters involved in this chapter. So, first of all, the character involved in this chapter is Jim McPherson. So, I am telling you something about Jim McPherson. He was a leader in English troop. Before going into the war, he was a teacher in Dorset in the west of England. जिम मैकफरसन एक लीडर था इंग्लिश ट्रूप, इंग्लिश आर्मी में। वार में जाने, युद्ध में जाने से पहले डॉर्सेट एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे वो टीचर था। डॉर्सेट एक प्लेस जो है वो इंग्लैंड में है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेव था, बहुत ज़्यादा करेजियस था। ही वॉज वेरी ब्रेव, काइंड, करेजियस एंड ओपन हार्टेड। नेक्स्ट इज कॉनी मैकफरसन. कॉनी मैकफरसन, she was Jim's wife. She lived alone in her home after Jim went to the war. Her house was partially burnt. She loved her husband a lot, and in this story, with the help of Jim McPherson later, we are going to read about her life and some significant memories which Jim has shared with Connie McPherson regarding war. What had happened during the war, what memories he had been carried out during the war. Hans Wolf, this is the next character. He was captain of German troop. He worked in orchestra in Dusseldorf. Before joining this troop, German troop, he was working in orchestra in Dusseldorf. He was very friendly and he patched up with English troop. Now let us read the story. I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. The author wanted a roll top desk. Michael wanted a roll top desk. So he found this roll top desk in a junk shop in Bridport. उसे ब्रिडपोर्ट के एक मार्केट में, उसे वहाँ पे एक जंक शॉप में ये रोल टॉप डेस्क मिला। जो डेस्क उसे मिला था वो बहुत बैड कंडीशन में था, बट चीप, सस्ता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे वो अपने आप घर पे रिपेयर कर लेगा, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। ही बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द रिपेयरिंग सेशन ही पुल्ड आउट द लेग्स ऑफ द रोल टॉप डेस्क एंड ही रिमूव द रोल टॉप completely.
he found some secret drawers. So he pulled out the drawers and found that it has been badly damaged by fire and water. द मैन हु सोल्ड इट, जिस आदमी ने उसे ये बेचा था, उसने उसे कहा था कि ये बहुत पुराना है, अराउंड 19th सेंचुरी का है, और ये ओक एक ट्री का है, ट्री की लकड़ी से, एक ओक ट्री आपने पढ़ा हुआ है, उसकी लकड़ी से बना था। लास्ट टाइम 7th क्लास में हमारा चैप्टर था हु इन्वेंटेड विटावोंग, द इन्वेंशन ऑफ विटावोंग, उसमें आपने ओक, पाइन, केदार, इन ट्रीज के बारे में पढ़ा है। जो लास्ट ड्रॉर था वो बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, तो उसके ऊपर उसे खोलने में उसने बहुत फोर्स किया, बहुत ज़ोर लगाया, उसे खोल भी दिया। उसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस बनी हुई थी जिसमें एक छोटा सा टिन बॉक्स था। उस टिन बॉक्स के ऊपर जिम्स लास्ट लेटर लिखा हुआ था और इसे जैन 25 में 1915 में उसे रिसीव हुआ था। और मैकफरसन का एड्रेस इसके ऊपर, कॉनी मैकफरसन का एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, और डेट थी दिसंबर 26, 1914। जिम का लेटर जो लिखा हुआ था कॉनी मैकफरसन के लिए, ऑथर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि इस लेटर में है क्या, बट ऑन द सेम टाइम ही वॉज वेरी हेजिटेटिंग हिमसेल्फ। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ही शुड ओपन इट और नॉट, बट फाइनली he opened the letter inside the box and read the letter. The letter was written by Jim Macpherson to his wife Connie Macpherson. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. मैं बड़े खुशी से, बहुत अच्छे मन से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, और इस लेटर के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है इस बैटलफील्ड में। सो ऑथर रीड द लेटर। द लेटर हैड बीन रिटन बाय कैप्टन ऑफ इंडियन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू, जिम हैज़ रिटन दिस लेटर, एंड अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपेंड on the battlefield on the Christmas day. So Jim Macpherson had narrated the wonderful experience or whatever happened on the battlefield through this letter. Unforgettable moments. In this letter, he is talking about the moments which he has spent with the with the German troop. So English and the Germans, they were at war. The two armies stood in their respective trenches on the two sides of no man's land. दोनों ही आर्मीज अपने नो मैन लैंड की जो पोजीशंस पे थी वो खड़ी थी, और एकदम से सडनली मैकफरसन ने देखा कि कोई वाइट फ्लैग अपनी एनिमी अपोजिट साइड से वेव कर रहा है, झंडा फहरा रहा है। देन ही सो, और उसके बाद उसे जर्मन सोल्जर्स उसे जोर से बुलाते हुए कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दे वर विशिंग देम अ हैप्पी क्रिसमस। सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक सेम टू यू। The English thought that मतलब everything has been sold, the matter has been sold. So to this surprise, they saw many Germans moving towards them. उन्हें दिखा कि कुछ बहुत सारे जर्मन्स जो थे उनकी तरफ आ रहे थे। कैप्टन को लगा कि शायद वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये इनकी कोई ट्रिक है। कैप्टन वाज अलार्म्ड, वो डर गया एकदम, लेकिन ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड कैंड मीट। वो अपने साथ जर्मन वाइन और स्नैप्स, मतलब एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनी होती है, उसे स्नैप्स बोलते हैं, और जो कैंड मीट है वो लेकर आए थे, स्यूजैज लेकर आए थे अपने साथ। और जब उनको आते हुए मैकफरसन ने देखा तो जो सोल्जर्स थे उनके बीच में कोई रिफल्स नहीं थी, वो एक दूसरे को गले मिलने लगे। और जर्मन ऑफिसर जो था वो मैकफरसन की तरफ जाता है और उसे बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से अपना हाथ मिलाते हुए कहता है मैरी क्रिसमस। और जर्मन ऑफिसर उसके बाद बताता है कि वो डसलडॉर्फ से है, और डसलडॉर्फ में मतलब जर्मन ऑफिसर बनने से पहले वो एक ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो को प्ले करता था, और इसीलिए उसने बताया कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। और मैकफरसन ने उसे इंट्रोड्यूस किया कि इस कैप्टनशिप से पहले, इस ट्रूप को ज्वाइन करने से पहले मैं भी एक टीचर था डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड में है।
उसके बाद हैंस वोल्फ हंसने लगता है, स्माइल करता है और वो कहता है कि मैं डॉर्सेट जानता हूँ, मैं कभी इंग्लैंड गया तो नहीं लेकिन मुझे इंग्लिश के बारे में पता है। उसका फेमस जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और वहीं से उसने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था। मैकफर्सन ने जो अपने हैंस वॉल्फ के साथ क्रिसमस केक को शेयर किया जो उसकी वाइफ ने उसे भेजा था। हैंस वॉल्फ ने कहा कि ऐसा मार्जिपैन, मतलब ऐसी स्वीट डिश जो थी, मैंने कभी टेस्ट नहीं की। इट वॉज वेरी टेस्टी एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल क्रिसमस पार्टी। अब कुछ सोल्जर्स जो थे वो फुटबॉल लेकर आए, तो सोल्जर्स जो थे वो खेलने लगे, तो मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ थे उनके लिए क्लैप कर रहे थे, उनके लिए चीयर्स कर रहे थे। और हैंस वॉल्फ ने मैकफर्सन को सजेस्ट किया कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक फुटबॉल मैच खेलें इंस्टेड ऑफ वॉर। लड़ाई करने से बेटर एक फुटबॉल मैच से ही हम सब कुछ एंड कर देते हैं, हैप्पीली एंड कर देते हैं। बिकॉज वॉर में तो बहुत सारी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड हो जाता है सब कुछ, है ना। इट्स बेटर कि हम ये मैटर को यहीं सॉल्व कर सकते हैं अगर हम वॉर ना करके एक फुटबॉल मैच खेलें। और उसके बाद फुटबॉल मैच के बाद वो सब ड्रिंक्स इटेबल्स जो हैं वो कंज्यूम सब ख़त्म हो जाता है। अब सब लोगों का एक दूसरे से जाने का टाइम आ जाता है। हैंस वॉल्फ जो है मैकफर्सन को सल्यूट करता है और धीरे धीरे, मतलब उसका मन नहीं होता जाने का लेकिन वो चला जाता है। उस रात जर्मन जो थे वो गाना गा रहे थे अपने ही, मतलब जो अपने लैंग्वेज का जो गाना होता है वो गा रहे थे, अपने लोकगीत गा रहे थे। और इंग्लिश सोल्जर्स ने उन्हें रिप्लाई किया खुद के ही और कोई लोकगीत गाने में, मज़ा किया उन्होंने, एंजॉय किया उनके साथ, एक दूसरे के एक्सचेंज भी किए। एंड उसके बाद चारों ओर शांति हो गई, इट वॉज ऑल साइलेंस। मैकफर्सन ने अपने लेटर में लिखा है कि वो लाइफ की मोमेंट जो थी उसके लिए एक ट्रेजर है, एक खजाना है जो कि कभी भी वो भूल नहीं पाएगा। उसे होप थी कि ये वॉर जो है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और बोथ आर्मीज़ जो हैं शांति से रह सकेंगी और इकट्ठे मिलजुल कर रह सकेंगी। जब ये लेटर उसने पढ़ा ऑथर ने, तो उसने सोचा कि जो भी इसका मतलब ऑनर है इस लेटर का, मुझे ये एनवलप, ये लेटर उसे दे देना चाहिए। तो लेटर पढ़ने के बाद ऑथर ने उस एनवलप को वापस, उसके उस लेटर को एनवलप में वापस बैक पुट किया और उसने डिसाइड किया कि मैं ये लेटर जिसका है उसे देने जाऊंगा। एड्रेस तो लिखा ही हुआ था ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट, तो वो वहाँ उस प्लेस पर पहुँच गया, हाउस नंबर 12। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा जला हुआ हो। तो उसे वहाँ पे जाके पता लगता है कि कॉनी मैकफर्सन के हाउस को मतलब आग लग गई थी, तो वो पार्शली आधा से ज़्यादा जल चुका था और फायरमैन ने मतलब कॉनी मैकफर्सन को बचा लिया था, लेकिन पर आधे से ज़्यादा घर जल चुका था तब बचाया था। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। अब वो 101 ईयर्स की हो गई थी और अब वो यहाँ नहीं रहती, वो एक नर्सिंग होम में रहती है। सो ऑथर जो है वहाँ पे नर्सिंग होम में चला जाता है। तो बर्लिंगटन के जब नर्सिंग होम में वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो मैट्रन से मिलता है और वो उसे बताती है कि जो मिसिस मैकफर्सन है वो यहीं पे है और वो उस दिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सी, परेशान सी हो गई थी, इसलिए हमने उन्हें कंजर्वेटरी में रख दिया। ऑथर ने मिसेस मैकफर्सन को एक चेयर पे, मतलब देखा कि वो चेयर पे बैठी हैं और उसने ऑथर की तरह बड़े, मतलब आंखों में एकदम चमक सी आ गई उसकी, उसे देखा कि जैसे ऑथर ने उसे बोला कोनी, तो उसकी आंखें में एकदम चमक सी आ गई, उसकी आंखों में आंसू से आ गए। जब ऑथर ने उसे लेटर दिया तो उसने ऑथर का हैंड पकड़ा। ऑथर उसको सारे लेटर की कहानी सुना रहा था लेकिन उसने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद उसने कहा कि तुमने मेरा प्रॉमिस पूरा कर दिया जिम, तुम वापस क्रिसमस की ईव, क्रिसमस की एक दिन पहले को क्रिसमस ईव बोला जाता है, तुम वापस आ गए, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस ईव से पहले आ जाओगे। और उसने उसे अपने पास बिठा लिया और उसे बहुत लंबे टाइम तक बातें करती रही, प्यार करती रही और उसने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इस वर्ल्ड का मिल चुका है, तुम जो वापस आ गए हो, तुमने जो अपना प्रॉमिस किया है।